जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे तलवारों पे सर वार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सही महफूज रहे तेरी आन सदा जान मेरी ये रहे न रहे ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी शान है तू देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी शान है तू देश मेरे मेरी जान है तू देश मेरे मेरी शान है तू हो
वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। We have no. Very good morning to Principal Ma'am, Vice Principal Ma'am, Primary and Extension Wing Coordinator Ma'am, and my dear teachers. Today, all of us are gathered here to celebrate the 73rd Republic Day of our country. Every year, we celebrate Republic Day on 26th January because the Constitution of India come to force on this day in 1950. Republic Day is celebrated to remember the historic moment when our nation became an independent republic country. As we all know, that India got its independence on 15th August 1947, and at that time the country didn't have its own constitution. Instead, it was governed by the laws implemented by the British. However, after many deliberations and amendments, a committee headed by Dr. Bhim Rao Ambedkar submitted a draft of Indian Constitution which was adopted on 26th November 1949 and officially came into effect on 26th January 1950. On the same day, Dr. Rajendra Prasad also began his term as the first president of India, and the Constituent Assembly became the Parliament of India under the provisions of the new Constitution. This day reminds us of our freedom struggle and how the great freedom fighters of our country sacrificed their lives to get us the Poon Swaraj. It's because of their struggle that today we are living in a democratic country where each citizen has a right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, and rights to constitutional remedies. Although we have seen a lot of economic improvements and success as a country, we still have many hurdles in our paths, such as poverty, unemployment, pollution, and the last 2 years of COVID. It is our duty as citizens to face these challenges and come out stronger on the other side. So, one thing we all can do is to promise each other that we will become a better version of ourselves so that we could contribute to solving all these problems and making our nation a better place. Thank you. Jai Hind. अब मैं आपके सामने सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी जो आपकी 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस के ऊपर है। माह जनवरी 26 को हम सब गणतंत्र मनाते और तिरंगा को फहराकर गीत खुशी के गाते। संविधान आज़ादी वाला बच्चों इस दिन आया, इसने दुनिया में भारत को नव गणतंत्र बनाया। क्या करना है और नहीं क्या संविधान बतलाता, भारत में रहने वालों का इससे गहरा नाता। यह अधिकार हमें देता है उन्नति करने वाला, ऊंच नीच के भेद ना करता पंडित हो या लाला। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब है भाई भाई, सबसे पहला संविधान ने बात यही बतलाई। इसके बाद बताई बातें जन जन के हित वाली, पढ़ने में ये सब लगती हैं बातें बड़ी निराली। लेकर शिक्षा कहीं कभी भी ऊंचे पद पा सकते और बड़ा व्यापार नियम से दुनिया में छा सकते। देश हमारा रहे कहीं हम काम सभी कर सकते, पंचायत से एमपी तक का हम चुनाव लड़ सकते। लेकर सत्ता संविधान से शक्तिमान हो सकते और देश के इस धरती पर जो चाहे कर सकते। लेकिन संविधान को पढ़कर
मानवता को जाने, अधिकारों से साथ जुड़े, कर्तव्य को पहचाने। धन्यवाद। Now I would like to request Vice Principal Ma'am to say a few words on this occasion and address the present gathering. Ma'am, please. जमाने से न पूछो क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान बस इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि अभी परिषा मैम ने भी बताया कि हम सब यहाँ देश का 73वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस शुभ अवसर पर आप सबको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस दिन के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने एक आदर्श समाज के निर्माण का सपना देखा था। आज के ही दिन से हमारा नया संविधान लागू हुआ था। आदर्श समाज का सपना जो था उसमें सबसे बड़ी बात थी स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी हर वर्ग के व्यक्ति को अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार अपना रोजगार चुनने की आजादी हो। दूसरा समानता, बिना किसी जाति भेदभाव की, बिना किसी वर्ग के भेदभाव की, ऊंच नीच का ख्याल ना रखते हुए हर वर्ग उन्नति की ओर अग्रसर होता रहे। और तीसरी बात उसमें थी भाईचारा, अर्थात समाज के सभी वर्ग के प्राणी आपस में सौहार्द, प्रेम, स्नेह, करुणा आदि भावों का सम्मिश्रण करते हुए आपसी व्यवहार करें। कुछ हद तक आज वो सपना साकार होता जा रहा है। सीमा पर जवान, खेत में किसान और घर में इंसान, हर कोई अपने कर्तव्य पालन में लगा हुआ है। आज इस महामारी के अवसर पर भी हम सब मिलकर यही प्रार्थना करते हैं, यही हमारा कर्तव्य बनता है कि आपस की दूरी बनाकर हम सभी एक भाव से सबके कल्याण की कामना करते रहें। हम सब एक दूसरे के कल्याण का भाव मन में रखेंगे तभी देश उन्नति की ओर अग्रसर होगा। किसी की मदद के लिए धन की जरूरत नहीं होती, बस उसके लिए तो अच्छे मन की जरूरत होती है। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much, ma'am, for your motivational words. Now I would like to call upon Pragya ma'am for vote of thanks. Good morning, everyone. Good morning, Principal Ma'am, and all my APS family members. A very, very happy Republic Day to everyone. And on this auspicious day, I would like to thanks all the staff members, those who have put on extra efforts to make this day special for all of us. That is especially the activity in charges, music team, the decoration. Thank you, Sabharwal Ma'am, the decoration team. That once we enter the school and it seems to be so nice, means it makes our day special, ma'am. And to all the support members who have supported to make this day special for all of us, thank you so much. With this, I would like to end this meeting, and a very happy Republic Day again. Jai Hind.